Hello children, welcome to your maths video class. Children, I hope you all have started attending your online classes and you are watching the videos regularly. Children, the videos that are uploaded for you is very important. All the videos are very important so that if in case you miss your online class due to network problem or due to some other problem, you can go through these videos, as well as all the exercises are solved in the videos. So while doing your exercises, you can take help of these videos. Children, in my previous videos, since last 2 days, I have started chapter 1 of your maths book, which is 3-digit numbers. In today's video, I will continue the same chapter because I have just started, I have just introduced the chapter, and we will be solving each and every question of the chapter. So don't worry, जो भी बुक में आपके इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब हम यहाँ सॉल्व करेंगे और आप उनको देखकर उनकी हेल्प लेकर आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। पिछले जो वीडियो है उसमें मैंने आपको इस चैप्टर का पेज 15 कंप्लीट करवाया था, इज़न्ट? आज हम उसके आगे का पेज करेंगे। पेज 15 पे 101 से लेकर 200 तक के 3-digit नंबर्स थे। लेट मी राइट द नेम ऑफ द चैप्टर। चैप्टर 1, 3-digit numbers. 3-digit numbers. So today we'll be doing page number 16 of your maths book. Page number 16, 1616, and this page has number forward counting from 101 to 200. Children, as I have told you, numbers from 101 to 200, all the numbers are of 3-digit. 100 is the smallest 3-digit number. 99 is 2-digit number. 100 is the smallest 3-digit number. सबसे छोटा 3-digit number 100 होता है, और फिर उसके बाद से 100 से हम स्टार्ट करते हैं 101 और फिर 200 तक के जितने भी उसके बाद से जो भी नंबर आ रहे हैं, अभी तो हम आज के जो वीडियो की बात कर रहे हैं 101 से 200 तक के जितने भी 3-digit नंबर्स हैं उसकी हम फॉरवर्ड काउंटिंग लिखेंगे, ठीक है। आपकी बुक में ऑलरेडी ग्रिड बना हुआ है, स्पेस दिया हुआ है टू राइट द नंबर्स। फॉरवर्ड काउंटिंग मतलब आगे 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 आगे, +1 +1 +1 वाला फॉरवर्ड काउंटिंग। तो आपकी बुक में पहले से ही ग्रिड बना हुआ है वेयर यू कैन राइट, बट हियर ऑन बोर्ड आई विल ड्रॉ ग्रिड फॉर यू एंड देन वी विल राइट एंड वी विल रीड ईच नंबर। हर नंबर को हम पढ़ेंगे, जो नंबर लिखना भी है और उसको पढ़ना भी है, और क्यों उस नंबर को हम वैसे रीड करते हैं वो भी मैं आपको बीच बीच में बताती जाऊंगी। हालांकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 3-digit नंबर्स हम कैसे रीड करते हैं, उनकी प्लेस के अकॉर्डिंग ही हम नंबर्स को रीड करते हैं, चाहे वो सिंगल-digit नंबर हो, चाहे वो डबल-digit नंबर हो, या फिर 3-digit 4-digit जो इतने भी नंबर्स होते हैं उनको हम उनकी प्लेस के अकॉर्डिंग, उनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हम उसको रीड करते हैं उन नंबर्स को। तो आज का हमारा क्या है, राइटिंग 101 to 200 and reading also. Okay, so let's start. Write numbers in order from 101 to 200. Question is, write the numbers in order from 101 to 200. This question is given on your page number. Date is 9. Okay.
क्वेश्चन इज गिवन इन योर बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन. आई एम राइटिंग द क्वेश्चन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ओनली. सो एज यू कैन सी, राइट द नंबर्स इन ऑर्डर. इन ऑर्डर मतलब एक सीक्वेंस में, जिस ऑर्डर में चलते हैं नंबर्स फॉरवर्ड काउंटिंग में, उसी ऑर्डर में आपको लिखना है. नाउ I will have to draw columns and rows so that it will be easy for you to understand. Okay. I'm leaving a little bit space to explain something. अगर मुझे बीच में कुछ explain करना है तो I should have some space. Okay. So this is the grid. यहाँ से हमारा ये शुरू हो रहा है. Let's see. So temporary grid is red. अब इसको अब हम will start writing. Okay. Now we have to write from 101. अब ये जो number है 1, 0 and 1. Children, you can see that 3 numbers are written here. 1, 0, 1. 1. Then 0 and then again 1. So this is a 3-digit number. I have explained to you that when 3 numbers are written together and they are read together, they are called 3-digit number. जब 3 numbers को एक साथ लेते हैं, वो 3 नंबर सेम नंबर भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, मतलब रिपीटेड नंबर्स भी हो सकते हैं, या तीनों नंबर अलग भी हो सकते हैं, या कोई 2 रिपीट हो रहा है. तो नंबर 3 है होने चाहिए तो वो 3 डिजिट कहलाएगा. पर वो तीनों अलग अलग नहीं होंगे, एक साथ होंगे और पढ़ेंगे भी हम उनको साथ में, तभी वो 3 डिजिट नंबर कहला रहा है. उसको हम तीनों नंबर को एक साथ यूज़ कर रहे हैं. सो यहाँ पर जैसे ये नंबर 1 जो है वो रिपीट हो रहा है. अगर 2, 1, 2 है तो यहाँ पे दिस 2 इज़ रिपीटेड. एक बार यहाँ भी 2 है, एक बार यहाँ भी 2 है, रेपिटेशन हो रहा है 2 का. लेकिन टोटल तो 3 नंबर्स हैं हमारे, 1, 2 and 3. So it is a 3-digit number. ये क्या है? एक 3-digit नंबर है. तो 3-digit नंबर में 3 नंबर्स होते हैं और ये 3 नंबर जैसा मैंने बताया, तीनों नंबर अलग अलग भी हो सकते हैं, कोई 2 नंबर रिपीट भी कर सकते हैं, या तीनों नंबर सेम हो सकते हैं, तीनों नंबर रिपीट हो सकते हैं. और फिर हम उसको साथ में पढ़ते हैं एज पर देयर प्लेस वैल्यू. उनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हम उन नंबर्स को पढ़ते हैं. जैसे कि अब मैं इसको क्या पढ़ रही हूँ? 101. क्यों मैं इसको 101 पढ़ रही हूँ? वाई आई एम रीडिंग दिस एज 101. क्यों? प्लेस वैल्यू आपने सीखा है 1s, 10s एंड 100. ऐसे हम लिखते हैं 1s, 10s, 100. मैथ्स में यहाँ से स्टार्ट करते हैं. तो ये वाला 100 की प्लेस पर है, इसीलिए ये 100 है. ये जो 0 है ये 10s की प्लेस पर है, और ये जो 1 है ये 1s की प्लेस पर है. तो 101. 10s कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने 10s का नहीं बोला. ठीक है. तो प्लेस के अकॉर्डिंग ही हम नंबर को पढ़ते हैं. तो अब यहाँ पर लिख रही हूँ मैं 101. ठीक. आपके बुक में काउंटिंग इज रिटन दिस वे, सो आई विल बी राइटिंग इन दिस वे ओनली सो दैट यू कैन रिलेट. आप बुक से रिलेट कर सकें. इसीलिए जिस फॉर्मेट में आपकी बुक में लिखा हुआ है, मैं उसी फॉर्मेट में यहाँ पर लिखूँगी. लाइन टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, बट आपको समझ में आ जाएगा. जैसे मैंने बताया कि इसको हम 101 बोल रहे हैं. अब अगर इसके बाद 1 के बाद क्या आता है? 1 के नेक्स्ट नंबर आता है 2. तो हम यहाँ पे 101 के बाद 201 नहीं लिखेंगे,
हमारी काउंटिंग ऑर्डर में जा रही है। 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है। काउंटिंग करते हैं ना, 1 2 3 4 5, तो ऐसे ही 101 है तो 1 के बाद क्या आएगा? 2, तो 102। अगेन इसको 102 क्यों बोलेंगे? क्योंकि प्लेस के हिसाब से अगर आप देखेंगे, अगेन मैं यहाँ पर आपको समझाती हूँ, 102, तो ये 1 है, 10 है और ये 100 है ना। तो ये वाला जो 1 है, ये इसकी प्लेस क्या है? 100 के नीचे है। 100 लिखा है ना, तो ये 1 100 के नीचे है, इसीलिए इसको हम 100 बोलेंगे। कितना 100? 100। अगर यहाँ पर सपोज यहाँ पर 3 होता तो 3 किसके नीचे है? 100 के नीचे है, इसलिए 3 को हम 300 बोलेंगे। 3 को क्या बोलेंगे? 300। अगर यहाँ पर 5 होता तो इस 5 को हम 500 बोलेंगे। क्यों 500 बोलेंगे? क्योंकि 500 के नीचे है, 100 की प्लेस पर है, 5 का प्लेस 100 है, इसलिए इसको 500 बोलेंगे। ठीक है। अगर यहाँ पर 7 होता तो 7 को क्या बोलते? वेरी गुड, 700 बोलते। क्यों? क्योंकि 7 जो है वो 100 की प्लेस पर है। ठीक है, इसलिए वो 700 है। इन द सेम वे टेंस की जगह पे जो नंबर होगा उसकी वैल्यू भी टेंस के हिसाब से होगी। अभी 0 है, 0 की जगह पे यहाँ पे अगर 2 होता तो उसको 20 हो जाता। 2 टेंस मतलब 20। अगर यहाँ पर 3 होता तो हम 3 टेंस मतलब 30। अगर यहाँ पर 4 होता तो 4 टेंस मतलब 40। 5 होता तो 5 टेंस मतलब 50। 6 होता तो 60। 7 होता तो 70। 8 होगा तो 80। 9 होगा तो 90। ठीक है। और जो नंबर 1 की प्लेस पे होते हैं उनको हम एज इट इज़ पढ़ते हैं। 1 है तो 1 बोलेंगे, 2 होगा तो 2, 3 को 3, 4 को 4, 5 को 5 एंड एज ऑन। ठीक है। तो प्लेस के अकॉर्डिंग ही हर नंबर की वैल्यू होती है। ठीक है। प्लेस, जिस प्लेस पर वो नंबर बैठा हुआ, जैसे हम चेयर पे बैठते हैं ना, आप डेस्क पे अपने बेंच पे बैठते हो, तो जिस प्लेस पर वो नंबर बैठा हुआ है अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यू भी होती है, उस नंबर की वैल्यू भी उसी के हिसाब से होती है। 100 की चेयर पे बैठा है तो 100 के उसकी वैल्यू होगी। 10 की प्लेस पे है तो 10 की अकॉर्डिंग वैल्यू होगी, और 1 की प्लेस पर होगा तो 1 के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू होगी। और वैसे ही हम उसको फिर रीड भी करेंगे। 100 वाले नंबर को 100 बोलेंगे, 10 वाले नंबर को 10 के अकॉर्डिंग बोलेंगे, और 1 वाले नंबर को 1 के अकॉर्डिंग बोलेंगे। जो भी नंबर 100 की प्लेस पे होगा उसके साथ हम 100 लगा देंगे। 1 है तो 100, 2 होगा तो 200, 3 लिखा होगा 300, 4 लिखा है 100 की प्लेस पर तो 400, अगर 100 की प्लेस पे 5 लिखा है तो 500, 100 की प्लेस पर 6 लिखा है तो उसको 600 बोलेंगे। 100 की प्लेस पर 7 लिखा होगा तो 700 बोलेंगे। 100 की प्लेस पे 8 लिखा होगा तो 800, 9 लिखा होगा तो 900। ठीक है। 10 का मैंने आपको बता ही दिया किस तरह से रीड करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पहले नंबर को हम 100 क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि उसकी प्लेस 100 पर है। ठीक है। 1 stands 100, 1 stands 100। तो इस 1 को हम 100 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो 100 की प्लेस पर है। ठीक है। वो सिर्फ 1 नहीं है, वो 100 है। गॉट इट? ये जो नंबर है ये सिर्फ 1 नहीं है, ये क्या है? 100 है। क्यों 100 है? क्योंकि ये 100 की प्लेस पर है, इसकी वैल्यू 100 है। इस नंबर 1 की वैल्यू क्या है? 100 है। ठीक है। इतना समझ में आ गया? 1 की वैल्यू 100 है क्योंकि वो 100 की प्लेस पर बैठा है। इसीलिए इस 1 को हम सिर्फ 1 नहीं बोलेंगे, इस 1 को हम 100 बोलेंगे। आई थिंक आई हैव रिपीटेड मैनी टाइम्स। अब आपको क्लियर हो गया है कि हम इसको 100 बोल रहे हैं और इसको सिर्फ 1 बोल रहे हैं। इसको 100 बोल रहे हैं और इसको 2 बोल रहे हैं। 2 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो 1 की प्लेस पर है। सिंगल है। चलिए 103 रीड करेंगे। 103
3 104 रीड करेंगे 104 105 105 106 106 107 107 108 108 109 109. Now I have used this space to explain. Now I can add on. अब मैं यहाँ पे एक और कॉलम ऐड कर सकती हूँ. वो मैंने थोड़ा सा छोड़ा था आपको एक्सप्लेन करने के लिए. Now 110 is 110. समझ में आ गया आपको? आई थिंक ये इतना तो क्लियर हो गया है ना. अब 10 के बाद क्या आता है? काउंटिंग जब हम करते हैं तो 1 2 3 4 जब 10 तक गिन लेते हैं, 10 के बाद क्या आता है? 11 आता है. वेरी गुड. 11 आता है तो हम 1 1 1 लिखेंगे. क्यों? ये 1 तो हो गया 100 क्योंकि ये 100 की प्लेस पर है, और 1 1 11. तो देखिए यहाँ पर 3 नंबर्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं, मतलब एक ही नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स. 1 1 1 है ना. एक ही नंबर 3 बार हमने लिखा है 1 1 1. सो इट इज़ अ 3 डिजिट नंबर. ये एक 3 डिजिट नंबर है क्योंकि डिजिट तो 3 है ना. टोटल डिजिट कितने हैं इसमें? कितने डिजिट हैं टोटल? 3 है ना. भले ही वो रिपीट हो रहा है नंबर, लेकिन टोटल नंबर्स कितने हैं? 3 हैं. इसीलिए ये क्या है? 3 डिजिट नंबर है. ठीक है. और ये 100 है और फिर 11. 1 1 2 इज 112. 1 1 3 is 113. 1 1 4 is 114. 1 1 5 is 115. 1 1 6 is 116. 1 1 7 is 117. 1 1 8 is 118. 1 1 9 is 119. And then 1 2 0 is 120. अब आपको ये समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? 1 1 2 दिस वन इज 100 क्योंकि वो 100 की प्लेस पर है, इसीलिए. तो ये वाला 1 क्या है? 100 है और ये 12 हो गया. 100 1 3 13. 100 1 4 14. 100 1 5 15. 100 1 6 16. 100 1 7 17. 100 1 8 18. 100 1 9 19. 100 20 20. All these numbers are 3 digit numbers, isn't it? सब में 3 नंबर्स हैं तो 3 डिजिट नंबर हो गया. और इसको मैंने रीड करना भी आपको बता दिया. अब 20 के बाद क्या आता है? जब आप काउंटिंग करते हो तो 20 के बाद आप क्या गिनते हो फॉरवर्ड काउंटिंग में? व्हाट डू यू काउंट? 20 के बाद क्या बोलते हैं हम? 21. वी से 21. तो जैसे यहाँ पे 20 पे ख़त्म हुआ तो अब हमें 21 बोलना है. ठीक है. तो दिस वन इज़ 100 एंड देन दिस 2 इज़ 10s. 2 10s मतलब 20. 2 10s मतलब 20 and 1. 121. 1 2 2. Now here number 2 is repeated. 2 बार इसको रिपीट किया गया है ना. लेकिन टोटल 3 डिजिट ही है हमारे. 1 2 2 3 डिजिट है. 122. दिस 2 इज 20. दिस 2 इज 1. देखिए फिर से यहाँ पे मैं इसको समझा रही हूँ आपको. 1 10 100. 1 2 2. ये 100 के नीचे है इसीलिए इसको 100 बोल रही हैं. ये वाला जो 2 है ये 10s के नीचे है इसलिए इसको हम 20 बोल रही हैं. और ये वाला जो 1s के नीचे इसलिए इसको सिर्फ 2 बोल रही हैं. ठीक है. दोनों ही नंबर 2 हैं. ये भी 2 है, ये भी 2 है. दोनों ही 2 हैं लेकिन वैल्यू अलग है. वैल्यू अलग है. कैसे अलग है? क्योंकि उनकी प्लेस अलग है. वैल्यू अलग है. 2 की वैल्यू क्या है?
टेंस है, तो 2 टेंस मतलब 20। इस वाले 2 को हम 20 बोल रहे हैं और इस 2 को सिर्फ 2 बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि उनकी प्लेस ऐसी है, इसीलिए 2 टेंस की प्लेस पर है इसलिए 20, ये 2 वंस की प्लेस पर है इसलिए ये 2, तो 122। मैंने आपको बताया था ना, प्लेस के अकॉर्डिंग ही हम नंबर को पढ़ते हैं। 122 नहीं बोल रहे हैं, इसको 122 बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला जो 2 है उसकी वैल्यू टेंस है, इसलिए 120 भी नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये 220 नहीं है। 120 नहीं बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये 220 है पर ये वाला 220 नहीं है, इसलिए ये सिर्फ 2 है। 122। नेक्स्ट इज 1 2 3 which is 123। 1 2 4 124। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपकी बुक में ना बीच बीच में नंबर्स रैंडमली लिखे हुए हैं एंड यू हैव टू राइट इट एज इफ यू आर फिलिंग इन द बॉक्स। तो मैंने यहाँ पर जो 2 कॉलम है वो कंटिन्यूसली करा दिए और थर्ड भी मैं करा रही हूँ, बट आफ्टर दैट आई विल राइट द नंबर्स, जो आपके बीच में के नंबर्स हैं वो भी लिख देंगे। तो 124 के बाद क्या आता है? 1 2 5 125 125। 1 2 6 126। 1 2 7 127। 1 2 8 is 128। 1 2 9 is 129। और 29 के बाद क्या आता है? 30। यस, 130। 130। तो अब ये 3 जो रोज हैं वो मैंने कंटिन्यूटी में आपको बता दिए। अब यहाँ पर कुछ नंबर्स जो हैं आपके पहले से ही लिखे हैं, जैसे 100 ये पहले से लिखा हुआ 141 151 161 और फिर 191, देन 134, फिर 140 143 148 155 160। I will read the numbers for you, don't worry, मैं सारे नंबर्स आपको पढ़ के भी बताऊंगी। These numbers are already written in the grid। जो ग्रिड आपकी बुक में बनी हुई है उसमें ये नंबर्स पहले से ही लिखे हुए हैं, जो मैंने ये बीच बीच में लिखे हैं, these are already written। तो अब कंटिन्यूटी में आपको प्रॉपर ऑर्डर में इसको कंटिन्यू करना है लिखना। तो जो पहले से लिखा हुआ है उससे आपको आइडिया होगा कि उसके पहले या उसके बाद में क्या आ रहा है। ये 131 है, इसको हम क्या कर रहे हैं? 131, ठीक है। फिर 132 132, 3 10s 30 and 2 132। 133 100, 3 10s is 30 and 3 133। 100, 3 10s is 34 134। 34 के बाद क्या आएगा? 135। 136 136। 137 137। 138 138।
139 139। आई होप ये आपको समझ में तो आ ही रहा है कि अब तो आपको क्लियर हो गया कि किस तरह से ये काउंटिंग चल रही है। अब करेंगे 141 लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ेंगे कैसे। यहाँ पे 140 था, 40 के बाद काउंटिंग क्या आती है, 40 के बाद हम लिखते हैं 41, है ना। तो ये लिखा हुआ है 41। 104 जो है वो टेंस की प्लेस पर है, इसीलिए 40 और ये 1। 141 142 142, फिर है 143। तो आगे हम लिखेंगे 144। 143 पहले से ही लिखा हुआ है, इसलिए हमने ऐड किया इसमें। नेक्स्ट नंबर हमने लिखा 43 के बाद क्या आता है 44। 104 टेंस इज 40 एंड देन 4, 144। फिर है 145, सॉरी 145, 145। 4 टेंस है इसीलिए 40 बोल रहे हैं, 145 नहीं बोल रहे हैं। हियर 4 इज 40, 5 is 5 and 1 is 100. So 145. 146. Now you know why we will read this 146. इसको 146 क्यों बोलेंगे, क्योंकि 100 है, 4 टेंस है, 4 टेंस मतलब 40 और 6, तो 146। 147, 147। आपको हो सकता है कि ये पहले से ही काउंटिंग आती हो, हम श्योर आती, लेकिन हम क्यों ऐसे काउंट करते हैं ये आपको पता चला है ना। क्यों हम ऐसे ही काउंट करते हैं, क्यों हम 146 बोल रहे हैं, हम क्यों नहीं इसको 146 बोल रहे हैं या 164 क्यों नहीं बोल रहे हैं, है ना। क्योंकि प्लेस के अकॉर्डिंग ही हम हमेशा नंबर्स को पढ़ते हैं, ये आप हमेशा ध्यान रखना। प्लेस के अकॉर्डिंग ही हम नंबर को पढ़ते हैं, और हम 40 को 40 क्यों बोलते हैं या 30 को 30 क्यों बोलते हैं, ये भी आपको पता चल गया है। अब 148 मतलब 148, फिर 149 पढ़ेंगे कैसे। 1 is 100, so 100, 4 is 10, so 40, 9 is 1, so 9, 149। फिर 140 के बाद 4 के बाद क्या आता है, 49 के बाद 50। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 49 के बाद 50, 29 के बाद 30 ऐसे क्यों बोल रहे हैं, वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। काउंटिंग आपको आती होगी, पर रीज़न क्यों हम ऐसा बोलते हैं, क्यों ऐसा लिखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1 2 1 की प्लेस आप सिर्फ देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 के बाद क्या आता है 10 आता है। तो हम यहाँ 10 हमने एक और ऐड कर रहे हैं, हर बार हम एक एक ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो काउंटिंग में फिर वो 10 हो जाता है, तो नंबर चेंज हो जाता है, नंबर चेंज आ रहा है, 0 आ जा रहा है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 0। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगेन 0। तो वो जब एक एक नंबर ऐड होता है तो नंबर ज़्यादा हो जाता है। 19 है, एक और आ गया 20, 29 है, एक और ऐड कर दिया 30, ठीक है। अभी क्योंकि 9 के बाद 10 आता है, 10 2 डिजिट नंबर है ना। 10 क्या है, 2 डिजिट नंबर है, तो उसमें 1 तो 0 ही हो जाता है, और ये 1 क्या हो जाता है, टेंस हो जाता है, 1 टेंस, है ना। जब 2 डिजिट नंबर होते हैं तो उसमें एक 1 होता है, दूसरा टेंस होता है, तो ये वाला 9 तो टेंस हो गया। तो सेम यहाँ पर 9 के बाद 10 हो गया ना, 9 के बाद क्या आता है 10, तो 10 मतलब ये 0 1 और ये क्या है टेंस है। तो पहले ही हमारे पास एक टेंस है, उसमें एक और टेंस डाल देते हैं तो ये 2 बन जाता है। इतना समझ में आ रहा है आपको। फिर से देखिए, ये 9 है, ठीक है,
इस मान देखिए 2 + 1, यह 1 है, उसमें एक और 1 प्लस किया तो 2, 2 में एक और 1 प्लस किया तो 3, 3 के बाद फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और 9 के बाद 10, है ना, 9 के बाद 10। तो जब हम 9 के बाद 10 लिखते हैं तो 10 2 डिजिट नंबर हो जाता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर हो जाता है। और इस 10 में एक 0 है और एक 1 है, तो ये 1s है और ये 10s है। 10 में एक 1s हो गया और ये 10s हो गया, तो ये 10s पहले से ही एक है, ठीक है, और हमारा यहाँ पर पहले से ही एक 10s है, या पहले से यहाँ पर एक 10s है। आप देख सकते हैं ये भी तो 10s है ना, 10s है ना, तो एक 10 और एक 10, कितने 10 हो गए, 2 10, 2 10, ठीक है। यहाँ पे 2 10s है और एक और 10 मिला देंगे तो 3 10s हो गया। यहाँ पे 3 10s है, एक और 10 मिला देंगे तो 4 10s हो जाता है। यहाँ 4 10s है, एक और 10 मिला देते हैं तो 5 10s हो जाता है, और 1s जो है वो 0 0 होते जाता है, ठीक, समझ में। इस तरह से नंबर्स जो हैं वो बढ़ते रहते हैं। तो आज हमने कितना किया, 150 तक किया, 150 तक किया। आपको ये काउंटिंग का सीक्वेंस समझ में आ ही गया होगा, ठीक है, किस तरह से हम फॉरवर्ड काउंटिंग कर रहे हैं, क्यों उस नंबर को वैसे पढ़ रहे हैं, किस तरह से उनकी प्लेस होती है और प्लेस के अकॉर्डिंग हम नंबर को पढ़ते हैं। तो 150 तक का मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आके 1s क्यों 0 हो जाता है ये भी आपको मैंने बताया। 1s जो है वो 0 0 0 है, 10s पे नंबर है और 100s पे भी नंबर है। क्यों 1s 0 होता है वो मैंने आपको यहाँ रीज़न बता दिया। 9 के बाद क्योंकि 10 आता है और 10 में जो 1s होता है वो 0 होता है, तो इसीलिए ये सारा 0 है। और 10s हर बार 10s में नंबर बढ़ते जा रहा है, 1 2 3 4 5, हर बार 10s का नंबर बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो आज का हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। 150 तक हमने कर लिया है और अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का करेंगे, 150 से आगे का करेंगे। ये आपने समझ लिया होगा। अब आगे नेक्स्ट वीडियो 151 से 200 तक को हम कंप्लीट करेंगे। सो जितना मैंने इसको करवाया, प्लीज़ डू दिस इन योर बुक में से आप कर लीजिए और बाकी का हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।